So agricultural marketing system means whatever the produce is being produced, whatever the crops are there with the farmer, how these crops will be sold, in which market it will be sold. Because the main problem after producing any commodity, the main situation any producer faces is that how to sell the commodity. Because if the sale is not there, they will not be eager to produce the next lot. Okay? Because whenever we are having the money, then only we will purchase the raw material for the next one. The farmer will purchase the inputs, the farmer will purchase this fertilizers. Okay, they need the land, they need this tractors. So money is needed even for their basic expenses also. So the produce that is being produced by the farmer, that has to be sold out, and it not only includes the selling, it includes the assembling, means इकट्ठा करना, storage, क्योंकि एक साथ में सब नहीं बिकेगा, उसको store करना कोल्ड स्टोरेज में, प्रोसेस करना. जैसे आप देखते हैं कि पता होगा आपको, जो बच्चे मेनली फार्मर फैमिली से हैं, कि कैसे गेहूं होती है पूरी, उसकी जो कैसे फसल में होती है, फिर उसको हार्वेस्टर से उसको सफाई करी जाती है, फिर उसको मिलता है. प्रोसेस चल रहा है ना. दूध है, कई जगह पर दही के रूप में मिल रहा है, पनीर के रूप में मिल रहा है, तो उसको प्रोसेस किया गया है. प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये नहीं कि हमारे किच्छा में सब कुछ बन रहा है, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को जगह जगह पर पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी पैकेजिंग करना, है ना. क्योंकि अब जो है दूध है या पनीर है या खाने की चीजें हैं, दालें हैं, ऐसे रॉ में नहीं पकड़ा सकते ना. उसकी पैकिंग करना, क्योंकि उसके पैसे भी लेने, क्वांटिटी 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, उसके हिसाब से पैकेजिंग करना, ग्रेड करना. कुछ बेटर क्वालिटी की होती है, वो महंगी होती है, कुछ हल्की क्वालिटी होंगी, वो सस्ती होंगी, है ना. और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिस शॉपकीपर को देना है उस जगह पर पहुंचाना. ये सारा का सारा प्रोसेस दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एग्रीकल्चर, दिस रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज द प्रोडक्शन इज मेड, but now that production has to be sold up in the market. So for this process they need the agricultural marketing system, and it involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and the distribution of the different agricultural products. Okay, so this means the agricultural marketing system. Okay, now next one is the this problems faced by the farmers in the agriculture marketing system. Okay, just now I'm sharing the screen. Now the problems faced by the farmers in the agricultural marketing system, what the problems are being faced by the farmers, first is the manipulation by the big traders, which means that the big traders manipulate the small traders. Whenever they produce a good amount, they used to purchase that slot in a very less rate, and the farmers are at loss. They doesn't earn more profit, and if the profit is not there, how a person will do the more production? Okay, everyone needs the profit, because profit is the basic of every business. If you are not earning profit, better to shut down your business. Okay, so many times the small farmers are being manipulated by the big farmers. They force them to sell at the low prices. Even if they need the money, they give the money in advance, but they purchase the goods at the very less prices. Second is lack of the market information. Many times farmers doesn't have even the market information, that what prices are going on the market. Okay, they don't know. They are illiterate, or they are ignorant about this. They trust the big traders, and they have to sell when they are not having the information, they sell their product at the less prices, and the small farmers at the loss. The big farmers is not at loss, but the small farmers are at the loss, and the basic the farming is being done by the small farmers only. Third is a lack of storage facilities. The small farmers or poor farmers, they are not having the storage facilities. Yeah, because many times the goods are there that whenever they are being they are being produced, they are being sold at the less prices. But in the market, the demand is not there. What the big traders do, they purchase that goods and they keep it in they keep it in the cold storage, and then they sell it at the high prices. So the middlemen and the big traders serving more, and the small farmers, those who do the actual production, those who do the actual farming, they are not able to earn the more profit, whatever the middleman or the big traders are earning. So these are the problems faced by the farmers in the agriculture marketing system: manipulation by the big traders, lack of market information, and the lack of the storage facilities. Okay. Now the next one topic is measures to improve the agriculture marketing system. means सरकार ने कौन से steps दिए हैं इस agriculture जो farmers problems face कर रहे हैं उसको improve करने के लिए. First is the regulated market. Now the government has set up many of the regulated markets. Just see in your books that
दिस वे जो जैसे यहाँ पर बेटा अनाज मंडी है हमारे इधर बिल्कुल शहर के बाहर, ऐसे मोस्टली जो ऐसे शहर ज्यादातर शहरों में जो कि बिल्कुल गांव से कनेक्टेड है, उनके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में यानी कि बिल्कुल शहर के बाहर सरकार ने ऐसी मंडी बनाई है जहां पर कि फार्मर डायरेक्ट आकर के अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। और ये खासकर बिल्कुल शहर के बाहर है, क्यों? ताकि जो किसान है वो उस ट्रैफिक में ना फंसे, ऐसा ना हो कि उसको पूरा शहर का ट्रैफिक क्रॉस करके फिर आना पड़ रहा है, वो उसके लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जो है, ऐसे बाईपास पर या बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पर शहर के ऐसे मार्केट सेटअप है, ताकि जो किसान है वो भले ही छोटा किसान है बड़ा किसान है, वो सब जो है आकर के अपनी आराम से अपना सामान को बेच सके बिल्कुल शहर के बाहर। सेकेंड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सरकार ने इस तरीके से कई जो है अपनी तरफ से कई सड़कें गांव तक सड़कों से गांव को कनेक्ट किया है, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, ये सब जो है प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब सरकार ने अपनी तरफ से खोले भी हैं। लेकिन वही होता है कि मेनली फायदा इसका बिग फार्मर्स ही उठा पाते हैं। और काफी जो है सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शुरू करी है, लेकिन अभी भी जितनी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अभी ये सब कुछ कम है। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है बेटा, कि जबकि एक साथ में सामान को पूल करके फिर उसको बेचा जाता है। इसका जो बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है वो है मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात में ना। आप लोगों ने सुना होगा कि मिल्क कोऑपरेटिव जो है यहाँ पर गुजरात में, ये इकट्ठा दूध इकट्ठा करके जगह जगह जैसे घर घर पे डेयरी फार्मिंग होती है, जानवरों को पालते हैं, तो वो दूध लेकर के इकट्ठा दूध लेकर के सामान बनाया जाता है, जैसे कि दूध, घी, पनीर ना। मेनली आप अमूल के प्रोडक्ट्स देखते हो, मेनली सारा जो प्रोडक्शन है ये कहाँ से होता है? गुजरात से होता है। तो ये मिल्क कोऑपरेटिव्स है। ऐसे ही अगर जो है गेहूं इकट्ठा लेकर के बेचा या फिर और कुछ डेयरी फार्मिंग का और सामान इकट्ठा लेकर के बेचा, ये कहलाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि इकट्ठा छोटे छोटे किसानों से सामान लेकर के सही दाम पर। और फिर ये होता है कि जब आप भले आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, लेकिन आपको काम जब बराबर मिल रहा है तो आप उसको काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि अच्छे प्राइस भी मिल जाते हैं किसानों को, प्रोडक्शन उनको ज्यादा करने का मौका मिलता है। ये भी सरकार के द्वारा उठाया गया स्टेप है। नेक्स्ट इज द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ सरकार ने जो अपने पॉलिसी चलाई है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है एमएसपी। एमएसपी आपको मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में। व्हाट इज इन दिस एमएसपी? कि जो किसान है वो अपना जैसे जो बेसिक चीजें हैं, वीट, राइस, मेज, इनको बाजार के रेट से ऊंचे दाम दिए जाते हैं, ताकि प्रोड्यूसर, फार्मर डिस्करेज ना हो प्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि भले ही बाजार का रेट सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, मान लीजिए 1000 रुपए, लेकिन सरकार उसका जो प्राइस तय करती है, मान लीजिए 1800 रुपए तय कर दी, 2000 रुपए तय कर दी, तो जब सब लोग उसे खरीदेंगे, है ना, सरकार खरीदेगी तो हमें भी खरीदना पड़ेगा उसी रेट पर, तो किसान को फायदा ना हो इसलिए बाजार के रेट से ऊंचे दाम तय करना कहलाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हम एक नाम और देते हैं मैक्सिमम प्राइस, सॉरी मिनिमम प्राइस। सेकेंड इज द मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक। कई जगह पर सरकार, जैसे ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, दे आल्सो मेंटेन द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मींस खूब सारा सामान जो है फार्मर से इकट्ठा कर लिया, फिर उनको पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर उस अनाज को एक्सपोर्ट करना। क्या होता है ना, मेनली जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, सब के सब किसान है ज्यादातर, तो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार खुद ही ये प्रोड्यूस खरीद लेती है, ताकि जो है आसानी से इसको मार्केट में बेच सके, अपने हिसाब से बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके। और लास्ट इसमें है पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज आल्सो नोन एज अ राशन डिपोज, इन व्हिच द गवर्नमेंट सेल द प्रोडक्ट्स फॉर this BPL and the above poverty line also. BPL are having the more grains and the above poverty line are having the less grains. Okay, so this is also a step taken by the government and known as a different policy instrument measures. Okay, so this is the